Hello students, now today we are going to continue lesson 10 and today we will learn about tables. So what is table? A table is an organized arrangement of text, means any data which you want to write in tabular form or in a structured form. For this we write tables, as they have given you some examples. Suppose you are writing product catalogs, bills, list of name, financial statistical reports. You know there are some data which we can write only in tabular form, then only it is meaningful. If you will write in sentence form, you will not be able to take decision. तो there are some data जिसको सिर्फ हम tables की form में ही लिखेंगे तो वो meaningful होगी. Now they have told you some ways how we can insert a table using three methods: using grid option, this is grid option, using insert table, and using draw table option. So there are three methods to insert a table which we will learn in practical: how we can enter data in a table, how we can select the edge of the cell, row, column, or entire table, and how we can change the alignment of the text. Okay, then we will learn how we can enter data in a cell. Sorry, the same thing I have repeated. Vertical alignment, then method 1, method 2. There are so many methods, you can follow any method, need not to learn a particular method or all methods, is your choice. How we can rotate the text in a table, as you can see they have rotated the text in a table. Okay, so today we will learn these things and we will see if we are able to complete this. Okay, so let's start with the practical. So I am going to open MS Word. So first we will learn how we can insert a table. ठीक है, तो टेबल को इंसर्ट करने के थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट इज दिस इज कॉल्ड ग्रिड. और अगर आपको और कॉलम्स और रोज चाहिए सपोज और, तो आप एरो की भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, insert table. So it will ask you number of columns and rows. So this is the second way. Third way, in which you can click on again insert table, draw table. So you can also draw a table using, it's your choice. Okay, कि आपको टेबल जो बनानी है कैसे बनानी है, like this. Okay, if you want to erase, you can erase. Suppose this I have made y mistake, so I can erase this also. ठीक है, so in this way we can draw a table with the help of pencil. So there are three ways. Now let's see. Suppose I have inserted the table using the second way. I have taken 5 columns or 4 columns and 3 rows. Okay, I have written something here. Suppose if you want to write, click on shift tab key, you can use B, you can use tab key, or you can also write with the help of mouse. It's your choice. आप टैब की भी यूज कर सकते हो, माउस की भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन राइट. Suppose I want to remove this row, so I can remove it also. Okay, this is my table, how we can insert it, and I have shown how we can enter the data using tab or shift plus tab. अगर आपको एक रो और चाहिए तो आप टैब की प्रेस कर सकते हो, तो वन मोर टैब इन रो विल बी इंसर्टेड. नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन यू सेलेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेबल. इफ अगर आपको कोई सेल सेलेक्ट करनी तो आप उसकी एज पे क्लिक करो, तो ये एक पूरी रो हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको पूरी रो करनी है तो लेफ्ट साइड पे एच पे क्लिक करो. जैसे सपोज मुझे सेकंड रो सिलेक्ट करनी है, तो जब ये माउस पॉइंटर आएगा उसकी एच पे, उस रो की एच पे लेफ्ट साइड क्लिक करो तो पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी. और अगर आपको सेल सेलेक्ट करनी है तो एच, सेल की एच पे. ये तो पूरा कॉलम हो गया, सेल की एच पे, लाइक दिस.
अगर आपको सेल कलेक्ट का सेलेक्ट, सपोज मुझे ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, तो ये देखिए एक छोटा सा ब्लैक एरो आ रहा है, क्लिक इट। ठीक है, तो ये आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। रो करनी है तो रो, कॉलम करना है तो कॉलम के अपर साइड पे क्लिक करिए, राइट इस पे क्लिक करना है पूरी रो पे तो सेलेक्ट द रो। तो एज पे आपको क्लिक करना है, पूरी रो करनी है तो लेफ्ट साइड, पूरा कॉलम करना है तो टॉप पे, और अगर आपको सेल करनी है तो सेल के अंदर। ठीक है, किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। कीप योर माउस पॉइंटर विद इन अ सेल, यू विल सी दिस ब्लैक माउस पॉइंटर एंड सेल विल बी सेलेक्टेड। किसी वर्ड को करना है, डबल क्लिक द वर्ड। अब पैराग्राफ तो मैंने लिखा नहीं है, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हाउ वी कैन सेलेक्ट अ वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट। ठीक है, अगर आपको अपनी टेबल में अलाइनमेंट्स चेंज करने हैं, तो वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है तो आप लेआउट टैब पे क्लिक करो। ठीक है, दिस इज द लेआउट टैब। ये आपकी तभी आएगी जब आप टेबल पे क्लिक करोगे, ये देखो, अदरवाइज लेआउट टैब विल नॉट अपीयर। तो आप टेबल को जब सेलेक्ट करोगे तब आपका लेआउट टैब अपीयर होगा। ठीक है, तो लेआउट टैब पे आप जाओ और यहाँ पे आप आराम से वर्टिकल, ये देखिए इतने सारे अलाइनमेंट्स हैं, किसी भी अलाइनमेंट को आप कर सकते हो। ये देखिए, दिस इज किसी भी अलाइनमेंट की, सेंटर हो गया, ये सेंटर में तो ऑलरेडी है। टॉप, एक्चुअली में ये टॉप इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि सेल का जो, अगर अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, वर्टिकली अलाइन करने के लिए आपकी सेल की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेल की जब हाइट ज़्यादा होगी तभी आप उसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये शो करूँगी, ये देखिए। ठीक है, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी है, बॉटम लेफ्ट, सेंटर, राइट, इन दिस वे। ठीक है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये देखिए रोटेट करना है तो आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी, ये होता है रोटेट करने के लिए, किसी भी तरह आप सेल को सेलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सेल को रोटेट करना। उसके बाद इट्स वेरी इजी, किसी भी सेल के टेक्स्ट को आपको रोटेट करना है, आप उसको सेलेक्ट करो या उस सेल को सेलेक्ट करो और उसको रोटेट कर दो लाइक दिस। ओके, तो इन दिस वे यू कैन रोटेट द सेल। ये तो हो गया अलाइनमेंट। these are the alignment buttons which help you to change the position of the text within a cell, and these help you to rotate the alignment of the rotation of the cell. अब अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आई एम टेल यू वेरी सिंपल वे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेल के यहाँ पे, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, ये देखिए। ठीक है, या फिर आप इस सेल को सेलेक्ट करो और व्यू में जाके रूलर को डिस्प्ले करो। ठीक है, अब ये देखो, आपको जिस भी सेल की विड्थ बढ़ानी है उस सेल के अंदर क्लिक करो, ये देखो ऊपर आ गए आपके, यू कैन चेंज। अगर आपको इसकी करनी है तो इस वाले माउस को ऐसे करो। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ द सेल, इट्स वेरी इजी। उस सेल के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन चेंज। इज दैट क्लियर? और अगर आपको सेल की हाइट बढ़ानी है लाइक दिस, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ये देखिए, लेकिन रूलर शुड बी डिस्प्ले। और अगर आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है तो आप लेआउट जाके में भी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट में वो विंडोज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ करोगे तो फिक्स कॉलम विड्थ हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेल की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, सपोज मुझे यहाँ इसके बाद एक रो इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक करो, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। लेफ्ट में करना है बी के, तो उसमें सेल रखो, कर्सर रखो, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको डी के नीचे एक रो चाहिए, राइट क्लिक करो, उसी सेल में क्लिक करो, इंसर्ट कॉलम रो बिलो। डी के ऊपर करना है, डी के में कर्सर रखो, क्लिक ऑन इंसर्ट, इंसर्ट रो अबव। तो इस तरह से आप बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हो रोज और कॉलम्स को। किसी भी सेल को डिलीट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज हमने जितना सीखा है आप उसको ट्राई करिएगा। थैंक यू।